Hello student, welcome to our channel Genius Public Inter College. I am your science teacher Anita Singh ma'am. Now today we will start lesson 2 of class 5th respiratory systems. Today we will discuss about the steps of respiration, breathing rate and how blowing air can warm up or cool down things, the importance of a stethoscope. How does respiration take place? There are two main steps of respiration. Breathing in, inhale oxygen into the lungs. Breathing out, exhale carbon dioxide from the lungs. The diaphragm has an important role. Breathing in and breathing out happen due to the up and down movement of diaphragm. It means down to take in oxygen and it moves release the carbon dioxide from the lungs. मीन्स रेस्पिरेशन थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम टोटल इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में मुझे समझाना होगा कि रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है. जब हम नोज़ के थ्रू हमारी एयर लंग्स में जाती है तो उसे हम इनहेल कहते हैं, और जब लंग्स के से होते हुए नोज़ से बाहर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम ब्रीदिंग आउट एंड ब्रीदिंग इन, तो वो एक्सहेल कहते हैं. डायफ्राम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब ऑक्सीजन गैस बॉडी में जाती है तो डायफ्राम हमारा डाउन नीचे हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जाती है तो डायफ्राम अप ऊपर की ओर हो जाता है. आप एरो में भी देख सकते हैं डायफ्राम ब्लू कलर में नीचे हो गया है और फिर अप ऊपर एरो हो गया है. तो दिस इज अ स्टेप्स ऑफ 2 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ब्रीदिंग रेट, प्लेस योर हैंड on your chest as you breathe. Please do activity. Please, what is the pace of your breathing? Now stand and jump for 5 minutes. Keep your hands again on your chest. You are breathing hard and fast now. Why does this happen? मीन्स जब हम अपने चेस्ट पे अपने हैंड को रखते हैं तो आपको ब्रीदिंग नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर 5 मिनट्स के लिए आप जंप करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपका और फिर वापस अपने हैंड को चेस्ट पे रखेंगे और ब्रीदिंग रेट को महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो आपको ब्रीदिंग रेट बहुत हार्ड और फास्ट सुनाई देगा. बिकॉज वी नीड टू वी नीड ऑक्सीजन फॉर मैनी ऑफ आवर बॉडी फंक्शन. When we run, jump and play, we need more oxygen, so we breathe faster than usual. मीन्स अगर हम कोई फास्ट काम करते हैं, दौड़ने खेलने कूदने का काम करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन ऐसे कामों में ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है. तो फास्टर जितना जल्दी काम करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए. इसलिए हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. According to difficulty level of activity, the number of time we breathe also increase. तो अगर हमको कोई काम करने में प्रॉब्लम होती है कोई भी, तो हमारा तो ब्रीदिंग रेट हमारा फास्ट हो जाता है. इसीलिए द फास्टर वी मूव एंड फास्टर वी ब्रीथ. यूजुअली एडल्ट ब्रीथ अबाउट 18 times in a minute. Children breathe even faster. Count how many times you breathe in a minute. Next topic is blowing air to warm up or cool down things. Your mother has given you hot milk to drink, but you are getting late for school. What does she do? She blows into the glass of milk to cool it faster. We blow to cool the hot food or drink. The air from the mouth is cooler than the food, so it cools down the food. Does blowing always making things cold? Think what will happen if you blow on an ice cream when it become colder. Try it. Why is the woman in the picture blowing on a fire? Wood and fuels need air to burn, so blowing
into the fire makes the fire to burn faster and hotter. Means अगर हमें किसी चीज़ को गर्म चीज़ को ठंडा करना है तो हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, तब आप उसको फूंक मार के ठंडा कर सकते हैं. और अगर किसी चीज़ को हमको जलाना भी है, उसमें एयर फायर करना है, जलाना है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपके पिक्चर में भी दिख रहा है कि वुमेन्स फूंक मार रही है और उसमें आग जल जाएगी. तो यहाँ इससे यही डिस्कस होता है कि किसी चीज़ को गर्म करने या ठंडा करने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. Importance of stethoscope. When we go to doctors, they keep a stethoscope on our chest. Then he or she asks us to take long breath. Do you know why? Stethoscope is an instrument used to hear sounds of heartbeat and breathing. Doctor use it to check the health of our body, and our breathing and heartbeat change when we are unwell. Means जब स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स के पास आप चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स आपकी हार्ट बीट को और ब्रीदिंग को स्टेथोस्कोप से चेक करता है. अगर आप बीमार हैं तो हार्ट बीट क्या होगा, आपका अनवेल होगा. स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन कैन हार्म योर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. स्मोकिंग और पॉल्यूशन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्मलेस होता है, मतलब मीन्स हार्मफुल होता है, और इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और पॉल्यूशन से भी थोड़ा बच के रहना चाहिए. एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग क्लीन एयर आर रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट. This is an amazing fact, very interesting point. So please pay attention. Our body can withstand up to 3 weeks without food, 1 week without water, but we can live only for 3 to 4 minutes without oxygen. मीन्स कि जो हम फूड मतलब हमारी बॉडी विदाउट फूड तो हम 3 वीक तक रह सकते हैं, अब 3 वीक तक रह सकते हैं, लेकिन 1 वीक के लिए हम विदाउट वाटर भी रह सकते हैं, लेकिन 3 to 4 मिनट्स हम केवल विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं. उसके बाद हम सर्वाइव इम्पॉसिबल है हमारे लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी को. आई होप दिस लेक्चर you understood. If any problem, you comment in comment box. Thank you.